Hello students, welcome to class 9 biology. We are going to start a very interesting topic. I think all of you must have read about the cell. Cell, what we call as structural and functional unit of life. We'll also understand that it is not only structural and functional, rather it is hereditary unit of life also. How many of you have seen cell with unaided eyes? Yes, most of you are thinking you have not seen, but you have seen that. As you can see in the picture, egg. Egg is also example of a cell. So let us begin our understanding of this wonderful unit of organization, cell. Every organism is made up of cell or cell products. Cell itself is a unique identity. So you find around, there are numerous types of organisms. Some organisms have just single cell, whereas others are made up of many cells or number of cells. So we'll see the basic understanding, and then in subsequent classes, we'll follow up with the structural organization of the cell. What are the roles of different organelles in the cell? So let's begin. Cell, the fundamental unit of life. Well, we all know, I think in your earlier classes also you'd have seen, if you take a peel out of onion, stain it with safranin, and then place it under microscope, or maybe stain it with iodine, you can find structure like this. This is very, very common, and this structure you might have seen that. So this suggests about a brick-like structure, just like as we make a wall. So the brick is just arranged like that. So is our body. These are microscopic, generally microscopic, with the exception of cells. We'll see that they vary in shape and size also. What does the word cell mean? Cell in Latin refers to small room, and the root word is cellula. So it is the smallest structural and functional unit of life. And we'll add one more term, hereditary unit of life. Why hereditary? We'll see that. Basically, heredity refers with transmission of characters from one generation to another. हम बात करेंगे कि सेल सिर्फ किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को ही नहीं डिटरमाइन करेगा, बल्कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन में भी सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा. क्यों? क्योंकि सेल के अंदर में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस में एक विशेष प्रकार की मॉलिक्यूल है जिसे आप डीएनए कहते हैं. एंड डीएनए कंटेन्स जीन्स. डीएनए के अंदर आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो अगले सेल तक ले जाने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सेल ही वो माध्यम है जिससे ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है. अपार्ट ऑफ दैट, देखिए बहुत सुंदर एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा. दो प्रकार के सेल्स हो सकते हैं. इट कैन बी प्रोकैरियोट, इट कैन बी यूकैरियोट. प्रो प्रिमिटिव, यू ट्रू. सो यहाँ मूल अंतर है उनके न्यूक्लियस में. अब देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ये देखिए एक न्यूक्लियस यहाँ पे आपको बना दिखाई दे रहा है, राइट. एंड दिस डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस. ना न्यूक्लियस है, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. इनकी बात हम डिटेल्स में करेंगे और इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश भी करेंगे. बहरहाल प्रोकैरियोटिक सेल्स दे इंक्लूड बैक्टीरियल सेल्स, and eukaryotic cell includes all other like plant cell, animal cell, fungi, right? So, or even the unicellular cells. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आप सभी ने लैबोरेटरी में देखा होगा, बायोलॉजी लैब में बहुत सारे आपने देखे होंगे. इसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. ये दिस माइक्रोस्कोप इज वेरी वेरी पावरफुल टूल, बट the shape of the microscope that you see now, it was not same in the earlier days, right? As you can look around, and this is the first image. You should realize that how the cell was discovered. It was not discovered alive. It was discovered in 1665 by Robert Hooke. और उन्होंने कॉर्क जो आपने देखा शटल में कॉर्क होता है, या होम्योपैथी की दवा वाली ढक्कन जो कॉर्क का बना होता है, अगर उसकी थिन स्लाइस को आप कट करें, एंड इफ यू सी अंडर माइक्रोस्कोप यू विल सी समथिंग लाइक दैट. देखिए बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा. और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, दिस वन, this is what you call as cellula, yeah, small compartment
और सेल, और ये काम किया था रॉबर्ट हुक ने। साल था 1665, यानी तकरीबन आज से आप देखें करीबन 300 350 साल पहले, almost 350 years. So now we have got this unique optical instrument, compound microscope. देखिए, आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये क्या होते हैं। देखिए, I have given a image of that you can make and practice. प्रैक्टिकल में जरूर हमें इसे पढ़ना है। सबसे पहले you will find it's a combination of two lenses. पहला लेंस यहाँ आईपीस पे होता है, यहाँ हम देखेंगे ये आईपीस पे इनका पहला ये स्ट्रक्चर, और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये दोनों ही लेंस होंगे बाइकन्वेक्स लेंस। बाइकन्वेक्स लेंस यानी इस प्रकार के लेंस। और ये कैसे इमेज को बड़ा करते हैं, that we'll discuss again in a separate class. It takes some time to discuss, but this two arrangement ensures जो चीजें आप यहाँ रखते हैं। This is the stage. स्टेज के ऊपर में आप यहाँ देखिए क्लिप्स होते हैं, स्लाइड को आप यहाँ प्लेस करते हैं और इसकी इमेज आप देखते हैं। And in the meantime, you should realize this body tube, and this is a revolving nose piece, जहाँ पे आपको कई सारे लेंस लगे हैं। So वो लेंस जिससे आप देखते हैं that's called as eyepiece, और जहाँ आप ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं that's called as objective. There is an arm-like structure here. This is called as arm. इसको आप arm कहते हैं, right? यहाँ आपको दो नॉब दिखाई देंगे, एक बड़ा सा, ये देखिए this one. This one is coarse adjustment. इसे आप घुमाएंगे तो ये बॉडी ट्यूब ऊपर नीचे मूव करेगा, और दूसरा ये फाइन एडजस्टमेंट, थोड़े से मूवमेंट के लिए, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से फोकस कर पाए। स्टेज है, ये हॉर्सशू स्टैंड है। अब लाइट के लिए देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। इस मिरर से लाइट को रिफ्लेक्ट करके आप यहाँ भेजते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। ये कंडेंसर लाइट को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, ताकि जो स्लाइड मटेरियल आपने यहाँ रखा है वो बिल्कुल इल्यूमिनेटेड हो और वहां आप देख पाए। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन वैरी करता है। जनरली आईपीस चीजों को 10 गुना मल्टीप्लाई करती है। जनरली, मैं जनरल की बात बता रहा हूँ, और इसको 10x हम लेवल करते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 15 टाइम मल्टीप्लाई करने की व्यवस्था है, 45 गुना मल्टीप्लाई करने की व्यवस्था है, और 100 गुना मल्टीप्लाई करने की व्यवस्था है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए कितना टाइम बढ़ जाता है। अगर 10x आईपीस तो है ही, और साथ में 15x से आप देख रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी 15 into 10, दैट मींस 150 टाइम्स। ये मैग्निफिकेशन 150 गुना अधिक होता है। अब देखिए छोटी सी चीजों को आप कैसे देख पाते हैं, 150 गुना आप देख पाएंगे। और यही अगर 45x और 10x का कॉम्बिनेशन लगाएं तो कितना होगा? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 450 टाइम्स, 450 टाइम्स, right? So this is one very, very important and powerful tool. Let's have a look at the discovery, how it was discovered and who was credited. Briefly, we'll have a look at this. सबसे पहले मैंने जैसे बताया 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा सेल को, और देखिए इज रॉबर्ट हुक। सो ये उनका क्रूड माइक्रोस्कोप था जिससे उन्होंने देखा कॉर्क सेल को और बताया। लिविंग सेल को पहली बार देखने का क्रेडिट जाता है एंटोन वॉन लीवनहुक को इन 1671. एंटोन वॉन लीवनहुक, another curious enthusiast, and he have discovered, he started documenting each and everything. और उन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म को कोट किया है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल। उसके बाद न्यूक्लियस का पता चला 1831 में, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ये देखिए, ये रॉबर्ट ब्राउन की तस्वीर है। इन्होंने ऑर्किड के सेल में, ऑर्किड्स बहुतायत से आप यहाँ अपने आसपास में देख सकते हैं, वहां उनके रूट सेल्स में देखा न्यूक्लियस को। देन साइटोप्लाज्म, जिसे आप कहते हैं बेसिस ऑफ लाइफ, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय पर्किंजे इन 1839। और 3 वैज्ञानिक का नाम खास तौर पे आप याद रख लें, एमजे स्लेडन, थियोडोर स्क्वान और एडोल्फ विर्को। इन तीनों ने एक बेसिक थ्योरी दी जिसे आप कहते हैं सेल थ्योरी। इन्होंने बताया कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सबसे बाद वाले साइंटिस्ट एडोल्फ विर्को ने बताया, लेकिन उसके पहले ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात बताई
स्क्लेटन और स्क्वाड में। तो ये बेसिक सा जो डिस्कवरी का चार्ट है वो जरूर याद रखें, बिकॉज साइंस डेवलप्स in stages and in steps. So there is a historical genesis of science. Now you see, cell is made up of what? There are many components. आप cell को देखें तो cell की basic संरचना कैसी है? There is a cell membrane or cell covering. Then there is some cell organelles. अब कुछ cell में cell organelles नहीं होंगे membrane bound, जिसे आप कहते हैं prokaryote, लेकिन बहुत आयत में होंगे और साथ में उनमें न्यूक्लियस होगा। तो ये इसमें बहुत सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा सेल के साइज में, सेल के शेप में। देखिए जरा, स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ, ये याद कर लीजिएगा। जनरली बीइंग आस्क्ड, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, है ना। ये बहुत ही छोटा सेल है। आप देखिए यहाँ पे जो यूनिट दी गई है, नैनोमीटर का यूनिट दिया गया है। या सेल को अगर आप देखें तो उसके लिए आपको एक खास यूनिट समझना पड़ेगा, माइक्रोन। और मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोन कितना होता है। 1 मीटर को अगर आप 1 लाख पार्ट में काटे, कितने पार्ट में? 1 लाख। So 1 part is going to be 1 micron, यानी 10 raised to the power minus 6 meter. 10 raised to the power minus 6 meter. Mathematically, मैथमेटिक्स में आपने पावर्स पढ़े हैं, या यूं कह लें कि अगर 10 लाख पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया किसी भी मीटर को, तो उसके 1 पार्ट को आप 1 माइक्रोन कहेंगे। बहुत 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 छोटा होगा, और इसी के लिए इनको देखने के लिए जरूरत किसकी होती है? माइक्रोस्कोप की होती है। Largest cell that you can see around is ostrich egg. हमारे सेल में जो हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल है रेड ब्लड सेल, और न्यूरॉन नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल, तकरीबन 1 मीटर का साइज होता है। सो यू कैन फाइंड द रिलेटिव साइज हियर इटसेल्फ ऑन लॉगरिथमिक स्केल। हम और देखिए जरा, यहाँ जो मीटर्स में बेसिकली चीजें बताई गई हैं आपको। देखिए लार्जेस्ट सेल आप देख लीजिए, ऑस्ट्रिच का एग है, बहुत बड़ा होता है ना। इवन hen egg is of considerable size. माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है। द होल कॉलोनी इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रोस्कोपिक। हमारी बॉडी में पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, और जो लार्जेस्ट सेल होगा वो न्यूरॉन सेल होगा। वैसे प्लांट में अगर देखें तो लार्जेस्ट सेल इज एसिटाबुलारिया, एक एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी, एसिटाबुलारिया, राइट। एंड वी फर्दर सी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब बात करें अमीबा की, बात करें यूग्लिना की, बात करें बैक्टीरिया की। Here we are not looking at eukaryote or prokaryote, but prokaryote will be essentially unicellular. Prokaryote is going to be essentially unicellular. So that is what is depicted here in the picture. अब देखिए यहाँ पे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, they are essentially unicellular. Whereas multicellular organism includes fungi, plants and animal. अगर आप देखिए आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल, आरबीसीज, बोन सेल्स एंड फैट सेल्स, लिवर के लिए हेपेटोसाइट्स, ऑल एंड ऑल। ये सेल्स आया कैसे, सेल्स बनने की कहानी हम कभी और बात करेंगे इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, हाउ द फर्स्ट सेल वाज फॉर्म्ड, जिसे प्रोसेल कहते हैं। लेकिन जो तीसरे साइंटिस्ट की बात हमने पीछे की थी, स्क्लेटन कॉर्न के बाद में रेडोल्फ विर्को, उन्होंने कहा कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल बहुत ही जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। यू सी दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप यहाँ देखिए इनको, अमीबा है, अमीबा को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। ये इसे हम स्टूडेंट्स फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि कोई भी आराम से इस डायग्राम को बना सकता है। यू ट्राई एंड मेक एनीथिंग दैट विल बिकम एन अमीबा, राइट। देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फुट वैक्यूल, सब कुछ यहाँ मौजूद है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। यूग्लिना देख लीजिए, और ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है। दिस इज अबाउट बैक्टीरिया, दिस इज यूग्लिना। Multicellular organism, it includes fungi. You would have seen that fungi. Fungi is what? It is available in your surrounding. Mushrooms आप देखिए, वो भी fungi है, puffball, morels, ये सारे fungi हैं, plants. Again, multicellular organism. So you can find how they look like. Animals, they all are multicellular, right? And movement is one characteristics. So this is about the basic understanding of cell. So in our next वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। हम वहां बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की, और सेल किस प्रकार से डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। साथ में हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। सो बाय द टाइम फॉर टुडे यू शुड
draw a well-labeled diagram of microscope and label its function. Try to explore how it works. A part of that, you should also think about unicellular, multicellular organism. अपने आसपास में देखिए, observe कीजिए, right? And then in the next class, we'll talk about the further organelles. Till then, take good care of yourself. Read the book carefully. See you then.